السلام علیکم ناظرین، اسما خان کی طرف سے تمام جتنے بھی ہیں، تمام پورے پاکستان کو، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ بلوچی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں یا چاہے وہ پٹھان ہوں، تمام پورے ملک کو اسما خان کی طرف سے پاکستان کی آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن پاک زندہ باد اور جنرل عاصم منیر زندہ باد۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ پاک فوج نے آج ہمارے پوری دنیا میں ثابت کر دیا ناظرین کہ ہماری فوج جیسا دنیا میں بہادر لیڈر کوئی نہیں۔ جنرل عاصم منیر جیسا جو حافظ قرآن ہے، جن کا ایمان قرآن پاک ہے ناظرین، ہمارا فخر، ہم ماؤں بہنوں کی دعائیں۔ جنرل عاصم منیر زندہ باد۔ آپ کو پاکستان کی وہ جو ہے کامیابیاں مبارک ہوں اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، چاہے وہ اسلام کے دشمن ہوں، چاہے وہ ملک کے دشمن ہوں، چاہے وہ تفرقوں اور مذہبوں کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ دشمن ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ابابیل کے کنکروں سے جیسے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا، ایسے تمام ملک کے دشمن، دہشت گرد ہوں، جو بھی ہوں، کالعدم تنظیم ہو، کوئی بھی ہو جو اپنے پاکستان کو اور کسی بھی انسانوں کا ناحق خون بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کی روشنی اور ایمان کے ساتھ، ہمیں پاکستان کے ساتھ ہمیں فخر سے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہوں، تمام باپ بھائی بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو بہادری سے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج اس وقت پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر گئی۔ اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ اسما خان ایک فوجی ایس ایس جی کمانڈو آفتاب احمد کی بیٹی ہے ناظرین۔ میرے والد ایس ایس جی کمانڈو، میرے میجر مسعود میرے ماموں، جنہوں نے زندگیاں پورا خاندان اسما خان کا فوج اور آرمی، نیوی، رینجرز اور ایئر فورس میں ہے ناظرین۔ اور ناظرین، اسما خان نے اپنے بیٹے کو ایس ایس جی کمانڈو آپریشن برانچ میں تہا کو نیوی میں بھیجے، ایسے دشمنوں سے مقابلہ کر کے جہاں ایم کا دور تھا، جہاں قتل عام تھا ناظرین، جہاں ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی، روزانہ ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے۔ اور ناظرین، اس یونٹ کے علاقے میں نیو گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی کے علاقے میں اسما خان کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ان کے سگے چچا نے اور ناظرین اور ظالم چچا کے 9 بیٹوں نے آپ نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوگا، لیکن ایک حقیقت کے ساتھ اسما خان ایک بہادر فوجی کی بیٹی ہے۔ اسما خان کی ماں کو سلام، اسما خان کے والد کو سلام، پورا خاندان ابتباد سے تعلق ہے ناظرین۔ مگر اللہ تعالیٰ وہ تو ذل و منتشا وہ تو عز و منتشا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ 313 بھی تھے مگر ایمان کی طاقت کے ساتھ میرے والد درویش، روحانیت میں ان کا مقابلہ نہیں۔ کرنل جنرل ہمارے والد کے گھروں میں آ کے انہیں سلام کیا کرتے ابتباد میں ناظرین۔ اور اسما خان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ بلوچوں نے حاجی مرید گوٹ کے گھر مکان نمبر 80 میرے والد کا، اور وہیں جو ہے پیپلز پارٹی کا بھی علاقہ، گینگ وار والوں کا بھی علاقہ، اور ناظرین ان لوگوں نے ظلم کیا گیا۔ زرداری نہیں چاہتا تھا، جس طرح بے نظیر کو شہید کیا گیا ناظرین۔ ختیجۃ الکبریٰ نے بھی ناظرین میرا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ عورت کو جینے کا حق ہے۔ ہماری اسلام کی پہلی عورت ناظرین ختیجۃ الکبریٰ، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح میں لیا گیا، وہ بہادر عورت تھی، وہ کاروبار کرتی تھی۔ اسی طریقے سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال، بی بی فاطمہ کی مثال، اور اسلام کی کئی عورتیں ہیں اسی طریقے سے بے نظیر بھی تھی، جسے شہید کیا گیا۔ اس کی سزا یہ تھی کہ پاکستان کی پہلی لیڈر تھی، اسے شہید کیا گیا بے دردی سے، شہید کر کے، اور اس کی حکومتوں پہ راج کرنے والے آج ذوالفقار کے بھٹو کا، آج بلاول بھٹو کا ناظرین نام و نشان مٹانے والے۔ ہم ان کی خوبیوں کو بھی دیکھیں۔ اور حاجی مرید گوٹ کے جو ہے وڈیروں کا سسٹم اب نہیں چلے گا۔ اب پورے پاکستان کے 4 صوبے، صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ کا نام خیبر پختونخوا، کوئی یہ نہیں کہے گا سندھ صرف سندھی کا ہے، سندھی جو ہے سندھ کو صرف سندھ کا علاقہ کہتے ہیں، اسے پاکستان سمجھتی، غلطی نہیں کرتے۔ پنجاب والے نواز شریف یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب اس کا ہے، نہ صوبہ سرحد والے سمجھے کہ ہمارا یہ ہے، نہ یہ ملک کے 4 صوبے ہیں۔ اور ناظرین، وہ بنگلہ دیش اور تھا جو ملک کی سازشوں، سمندر کی وجہ سے، وہ دوریوں کی وجہ سے اور سیاست کی وجہ سے ہم سے الگ ہوا گیا، لیکن ان بنگالی بھائیوں نے بھی جب پاکستان انڈیا ہم
پہ حملہ کر رہا تھا تو بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آج اللہ تعالیٰ نے جس فوج کو پوری عوام گالیاں نکالے تھی اور جو عمران خان جیسے بہادر بندے کو بھی ٹریپ کر کے سیاست میں پھنسا کر زرداری نے اور مختلف جو ہے پارٹیوں نے مولانا فضل الرحمان نے سیاست کر کے اسے جان بوجھ کے فوج کے خلاف استعمال کیا گیا. جیسے فوج کے خلاف دلوں میں عوام کے لیے نفرت ڈالی, عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت ڈال دی. عمران خان انشاءاللہ زرداری کے بعد اگلا پرائم منسٹر عمران خان اس کو جنرل منیر منائیں گے, جیسے جو ہے نواز شریف سے کام کروایا جا رہا ہے. انشاءاللہ سعودیہ کا قانون آئے گا, وہاں کے مولوی چندے صدقہ زکوٰۃ خیرات بیوہ یتیموں کا مال نہیں لیتے, نہ تفرقوں میں بٹتے ہیں. وہیں سے اسلام شروع ہوا, وہیں سے نماز روزہ خانہ کعبہ سے میرے نبی نے اسلام پوری دنیا میں آیا. سعودیہ جیسے قانون کو لایا جائے, جتنے بھی مولوی حضرات صدقہ زکوٰۃ خیرات بیوہ یتیموں کا مال کھانے والے سورہ معون میں بولا ہے, ان لوگوں کی نمازوں کی خرابی ہے, جو ریاکار ہیں. آج پاکستان کراچی کو جلایا جا رہا ہے مذہبوں کے نام پہ, کبھی ایم کیو ایم کے نام پہ قتل و غارت کرایا جا رہا تھا, دہشت گردی کرائی جا رہی. آج جو ہے وڈیروں کے نام پہ, زرداری کے نام پہ جو اپنی بیوی کو مروا کر, اور بلاول بھٹو کا بھی کیریئر برباد کر دیا گیا. مریم نواز بھی تو آج کام کر رہی ہے, لاہور میں بھی تو کام ہو رہا ہے, اور وہاں لیپ ٹاپ شہباز شریف بانٹے جا رہے ہیں, اور یہاں سندھ میں صرف سندھیوں کو جو ہے ڈگریاں ملتی ہیں, سندھیوں کے بورڈ کے پیپروں میں آتے ہیں اور بچے خودکشی کر رہے ہیں. یہ وڈیرا سسٹم نہ تو بلوچستان میں چلے گا, نہ کسی ملک میں چلے گا. ملک کے صوبے انشاءاللہ بنیں گے, ترقیاں ہوں گی, ہر صوبے میں ان کے اوپر تعینات کیے جائیں گے. ان کا اسلام آباد میں ہوگا, اور جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ان کا کمانڈ ہوگا, اور انشاءاللہ صوبے بن کر پورے ملک کو ترقی دی جائے گی. دبئی میں بھی آپ جاتے ہو, وہاں بھی ہر مذہب, سعودیہ میں بھی ہر ملکوں میں جاتے ہو آپ, ہر جگہ پر بھی وہاں ہر طرح کے مذہب تفرقوں کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں انصاف ہوتا ہے. وہاں میر رضا کی طرح قتل, ایک جنزی اتنا پیارا بچہ, معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے گا کہ ہم آگے پڑھنے نہیں دیں گے. یہ وڈیرا سسٹم کے خلاف ہے ہم لوگ. بے نظیر کو مار کر حکومت کرنے والے, میں بھی شیلا رضا کے گئی. ایک زرداری جب مجھے اسما خان کو حاجی مرید گوڑ میں مکان نمبر 80 میں, اور 2 ٹکے کا وہ عابد سواتی, چور ڈکیت شرابی سجاد ساجد خالد طارق قریشی حجاز عالم عالم 2 ٹکے کے ان کو نہ پکڑ سکی, کیا وہ زرداری ملک چلائے گا؟ جس نے اپنے اردو نہ سکھا سکا بلاول بھٹو کو, تو ہم شدید مذمت کرتے. میں سلام پیش کرتی ہوں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے کہ نا میر رضا کے کیس میں تمام پوری کراچی کی مائیں بہنیں اٹھ گئیں اور اٹھ کے کھڑی ہو گئیں کہ ہم نے نہ ایم کیو ایم کو ماننا ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ماننا ہے. ہمارے اوپر فوج کو لایا جائے, جنرل عاصم منیر کو لایا جائے, جو کراچی کا کمانڈ سنبھالے, فوج سنبھالے. رینجرز کو بھی ان لوگوں نے خرید لیا, چند ٹکوں پہ رینجرز فوج کا حصہ ہے, اور جواب دینا ہوگا, چاہے وہ رینجرز میں ہو, چاہے وہ آرمی میں فیض حمید کی طرح ہو, چاہے وہ نوید کی طرح نیوی میں باورچی ہوں, اور وہ دلالیاں کرے, وہ غداریاں کریں, وہ دشمنوں کے ساتھ پاکستان کا مل کر اور پاکستان میں رہ کر, جو بلوچ ہو, سندھی ہو, افغانی کوئی بھی ہو, اور وہ پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے. اور ہم فوجی خاندان سے, اسما خان ایک بہادر فوجی کی بیٹی ہے, لڑ کر مقابلہ کیا, اور شازما خان کو ڈاکٹر بنایا, اور اپنے بیٹے کو نیوی میں بھیجا, اور ماشاءاللہ عبداللہ کو حافظ قرآن ٹپر بچہ. اور میں نے دشمنوں کے آگے ناظرین سر نہیں جھکایا اپنے والد کی طرح, ایک ڈٹ کر مقابلہ کیا. اسما خان ایک دلیر بہادر فوجی کی بیٹی ہے. مجھ پر ظلم دیکھیں, میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, مجھ پہ پانی بند کیا گیا, حملے کیے گئے. ابھی بھی جادو, کامران سرور انور اور ہنار حسیب 20 سال سے مجھ پہ جادو, حملے, کون سا ظلم میرے بچوں پہ نہیں کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کے کلام اور دن نماز, تہجد, اور میری والدہ ولیہ جیسی عورت, میری دادی تہجد گزار, اور میں بی بی ہوا, میری خالہ میرے نانا کے بعد گڑمانگ میں میری خالہ نے حکومت کری. ہم بہادر خاندان سے ہیں. ناظرین, میں نے اپنے بچوں کے لیے وقف کری ہے زندگی. وہ پنجاب کی 2 ٹکے کی عورتوں کی طرح, صبا کی طرح ہم نے کسی کو پھنسایا نہیں, چکر نہیں کیا. اپنے باپ, بھائی, اولادوں پر ہم قربان ہو گئے, اللہ اور اس کے رسول پر ہم قربان ہو گئے. تمام وہ جو مولوی اس وقت الٹے سیدھے مولوی سعد رضوی جیسے ہوں, یا طارق مسعود جیسے الٹی سیدھے دین اور تفرقوں میں بٹنے والے, تو شادیوں کے نام پہ صرف دین کو پھیلایا جائے. اور اب ختیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. آج ماں اور بیوی میں انصاف
माफ़ नहीं किया जाता। नाज़रीन, ये जो 2-2 की टिकटॉकों पे औरतें जो सबा जैसी, मक्कार और हिना जैसी और मरियम जैसी और एनी जैसी और सरवर अनवर जैसे बगैरत, अजाज आलम जैसे बगैरत लोग जो सिर्फ मैं उनके ज़बान की नहीं थी, तहस्सब पसंद, उन्होंने हमारा जीना हराम किया। अब पाकिस्तान फौज आर्मी से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने अजाब दिया, जनाजे निकले, जो अस्मा खान एक दरवेश की बेटी के साथ उन्होंने मुकाबला किया, तो अल्लाह ताला उनके घरों में जनाजे, मौत, बर्बादियाँ। कामरान टसोरी का हाल देख लो, साद रिजवी का हाल देख लो, कामरान सरवर अंदर के जनाजे देख लो, हसीब की माँ भी, बुशरा भी, सबका अल्लाह का अजाब देख लो। अल्लाह ने इन्हें मेरे करीब नहीं ला सके। और तारिक कुरैशी ने भी जब मुझे बगैर निकाह के हलाल आबद सवाती ने किया, बिल्डिंगों में आग लग गई। जनरल आसम मुनीर के साथ दरवेशों की ताकत है। मेरे वाला दरवेश अस्मा खान दरवेश और गाजी है। नाजरीन, तमाम माओ बहनें कराची की जितने भी उस मीर रजा के लिए निकली हैं, आज उन बच्चों को बेगुनाह शहीद किया जा रहा है। आज जिस तरह बेनज़ीर को शहीद किया गया, जुल्फ़िकार को मार दिया गया, क्यों जीने का हक नहीं है? लड़ो और सियासत ना करो, लीडर बनो। लीडर शेर होते हैं, अवाम के दिलों में मोहब्बत डाली जाती है। नाज़रीन, पर तमाम वो जो बच्ची का रेप किया गया, उनको सख्त सज़ा दिया जाए। पुलिस इस वक्त शामिल है। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस शामिल है। हमने इन लोगों को बेनकाब करना है। पुलिस वाले इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे, अस्मा खान पे डायरेक्ट हमले किए जा रहे, कोर्ट की तौहीन की जा रही है। नाज़रीन, और ये जो वकील, ये जो देखें, ये अल्ताफ़ खोसो जैसे ये वकील, ये देखें अल्ताफ़ खोसो जैसे वकील, क्यों कि नाज़रीन अस्मा खान ने सिर्फ और सिर्फ तानिया शाह की तरह लोहा फाड़ से ये देखें शेला राजा, इनके पास मेरा केस पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाए, क्योंकि असद इकबाल भट्ट साहब जो थे, ये जो अल्ताफ़ खोसो हैं, अस्मा खान ने दानिया शाह की तरह इज्जतों के सौदे नहीं करे। वो 2 का आबद सवाती दंतनाता फिरता है। जब यही हाजी मुरीद गोड में मेरे बच्चों को रख के ड्रामा, फैये, अदारे, पुलिस, थाने, कोर्ट, कचहरियाँ, मीडिया का करा, और इन मीडिया वालों के सख्त खिलाफ हूँ, और मेरे बच्चों को जीने का हक नहीं दिया जाता। नाज़रीन, बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। ये देखें साद रिजवी भी इसमें शामिल था, बगैर निकाह के रखा गया। उन मौलवी हजरात, कोई भी मौलवी हजरात हलाले पर जो ज़बरदस्ती बगैर निकाह के मुझे मारा पीटा, कोई भी जुल्म हो जाता है, कोई मौलवी नहीं होता। और ये साद रिजवी जैसा, जब उसने जाके जिस वक्त मुआहदा हो रहा था, उस वक्त साद रिजवी जैसे दलाल आ जाते हैं तो फौज के खिलाफ पूरे मुफ्ती मुनीबुर रहमान पूरे तमाम मौलवियों को इकट्ठा करके के हमला करने की धमकियाँ देते। अलियासत तारीख़ देखो, सदका ज़कात खैरात खाते। सऊदिया में कोई मौलवी सदका ज़कात खैरात लेता है, हलाले करता है, जिना करता है? ऐसे तमाम धंधों को बंद किया जाए, सऊदिया जैसे कानून को लाया जाए, और इस्लाम को, कुरान को, इस वक्त फितनों का दौर है, कुरान की तालीम को आम किया जाए। शहबाज शरीफ भी लैपटॉप बेच रहा है, जरदारी की तरह कत्ल आम नहीं बेच रहा। जिस तरह अल्ताफ हुसैन को रोका गया कत्लो गारत से, ऐसे जरदारी को और तमाम जितने लोग दहशतगर्दी पहुँचा रहे, पाक फौज जनरल आसम मुनीर से हम तमाम माओ बहनों की, बेटों की रिक्वेस्ट है कि आप आए कराची। इस वक्त पोर्ट है, समंदर गए, वहाँ दुश्मन हमें मारना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, हमें इसको मुकाबला करना है। सवा जैसी 2-2 की भागी हुई औरतें, हम जैसी कुर्बानी, हमारे माँ, दादी, खाला, हम जैसी औरतें अपने औलादों के लिए कुर्बान हो जाती हैं, अपने बाप भाइयों के लिए कुर्बान हो जाती हैं, और ये 2-2 की औरतें आकर हमें मारेंगी, हमें पागल और हमें करार दे दिया जाएगा। नहीं नाज़रीन, अब ये जुल्म किसी पे भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। हर कराची का बच्चा, हर मुल्क में, हर जगह अमन होगा। मैं पूरे मुल्क में जंगों के खिलाफ मैं ऐलान जंग करती हूँ कि जंगें नहीं होनी चाहिए। जंगों से तबाही बर्बादी आती है सदर ट्रम्प से, और उनसे मेरी गुजारिश है कि जो है ना, ताकत का इस्तेमाल जब करोगे तो मिट जाओगे। आप 4 किताबों पे एले ईमान हम रखने वाले हैं, ईसाई भी हमारे एले किताब, और 4 तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद भी हमारी। और इस तरीके से हमने दुश्मनों की चालों को बेनकाब करना है। हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। 4 मौलवी एक जगह पे आके शो में, अगर सुबह के शो, मॉर्निंग शो में आते हैं, वो गालियाँ देना शुरू करते। और कायदे आज़म ने दाढ़ी और पेंट कोट, दाढ़ी भी नहीं थी, पेंट कोट पहनते थे, और उन्होंने कायदे आज़म ने नाज़रीन पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। लामा इकबाल आशिक रसूल थे और दाढ़ी नहीं थी, और उन्होंने नबी के लिए उन्होंने ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने उसको पूरा किया। हम
तमाम सहाबा, तमाम अंबिया रसूलों की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान कुर्बान, अल्लाह रसूल के कुरान पर हमारी जान कुर्बान, पाकिस्तान पे हमारी जान कुर्बान, और अल्लाह और उसके रस्ते में हमारी जान माल औलाद कुर्बान। हम तमाम अल्लाह के वलियों की इज्जत करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज 99 लाख को मुसलमान किया। जिस किस्म की बेहुदगियाँ और तफरकों में बंटने वाले, अल्लाह ने कहा तफरकों में ना बंटो, अल्लाह की रस्सी को थामो। अल्लाह की रस्सी कुरान है। नाजरीन, आज 3 साल से मुझ पे 20 साल से जुल्म हो रहा, 3 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई भी नहीं निकला। आज मीर रजा का कत्ल हुआ, आज बच्चियों को अगवा किया जा रहा। आज जो सब पाक आर्मी से मैं कह रही हूँ कि आप और मुल्कों के दौरे करते हैं और पाक कराची का दौरा करें, और जो जो इसमें दुश्मन है उन जो मुल्क के अंदर घर में बैठे हुए हुकूमत करके और लोगों को सारे बलोचों के नाम पे, कभी तफरकों के नाम पे, कभी मजहबों के नाम पे, कभी पार्टियों के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। जरा फौज अपनी ताकत दिखा दे। हम खामोश है, इसका ये मतलब नहीं है कि पाक फौज जो है कमजोर है, हम बुज़दिल हैं। आसमानों से फैसले आ जाते हैं। तारिक कुरैशी और इन लोगों को भी आगे, आज ये पूरा गोली मार का हलाका तबाह बर्बाद हो गया मेरे बच्चों पर जुल्म करने के लिए। आज जरदारी का हाल देखो कि किस हाल को पहुंच गया, कमरान टसोरी किसको पहुंच गया, पुलिस की हालत आप देख लो। जितने भी केस अदालतों में पिंकी जैसों को जो है केस में बाइज्जत बरी किया जाता है, नहीं, ऐसी अदालतें होनी चाहिए जहां हर इंसान को इंसाफ मिले। एक मजबूर इंसान का बच्चा मर जाता है या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके साथ जुल्म हो जाता है और वो जाता है पुलिसों में, अदारों में, प्राइवेट अदारे और इन जैसे दरिंदे ट्रैप करके, नाज़रीन, इन जैसे ट्रैप करके हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये देखें, इन जैसे मौलवी हजरात धंधा करके, ये देखो, इस किस्म के ट्रैप करके शादियों के लिए आ जाते। कोई बच्चों के लिए आगे मेरे नहीं बढ़ा, किसी ने भी मेरे बच्चों को साथ नहीं दिया। वीडियो भी, पुलिस भी, थाने भी, कोर्ट भी, कचहरियाँ भी, सब कुछ कर ली, शेरा रजा के पास भी चले गई। ये सवाल उन शेरा रजा पे एक मुंह काला और धब्बा है नाज़रीन जरदारी पर, जिसने अस्मा खान को इंसाफ नहीं दे सका। अपने ही इनके इलाके में हाजी मुरीद गोट का मेरा शनाख्ती कार्ड है, वहीं आबद सवाती साहब का शोर चोर डकैत जो हमारे घरों पे कब्जा करके बैठे में, आज उनका साथ दिया। वहीं हाजी मुरीद गोट में नशे का कारोबार होता है, गैंगवार वाले सर काटते, वहीं पीपल्स पार्टी का दफ्तर है। यही MQM का इलाका, एजाज आलम भागता फिरता है, अली अहमद और हसीब और कामरान सरवर अनवर, और इनको पकड़ा नहीं जाता। उसमें पुलिस है ना, आज पुलिस पूरी दुनिया के सामने आई ना, आज वडेरे आए ना कि वडेरों को इंसाफ मिल जाता है। वो सिंधी मर गया, उसको जो सिंधी हिंदू मर गया तो उसको इंसाफ मिल गया। मीर रजा को उसको किस तरह घुमाया जा रहा, खुदकशी। इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया गया, बेनज़ीर जुल्फ़िकार भुट्टो को शहीद किया गया। वो उस गोली से नहीं मरी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उसे ऐसे ही दफना दिया गया मीर रजा की खातिर। ऐसे पूरे कराची उठ के खड़ा हो जाए और पूरी दुनिया, हम जब ताकतवर हो के पूरी दुनिया, कराची भी, पाकिस्तान के बाहर के मुल्क भी खड़े हो जाए इंसाफ के लिए। हम कहीं भी जुल्म होगा, हम किसी काफर, यहूदी, सिख, ईसाई मजहबों तफरकों में नहीं बढ़ते। मुसलमान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और नाज़रीन, हम इन तफरकों में नहीं बढ़ते। हमारे बड़ों ने जहाद किया, अपनी जानें दी, हमारी ज़िंदगियां फौज के साथ, हमारे ख़ानदानों में शहीद हो गए। और नाज़रीन, मैंने बेटे को अपने नेवी में भेजा, बेटी को डॉक्टर बना। मैं वो अस्मा खान हूँ, इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, और तोड़ने वाले कोई और नहीं, कोई बाहर से नहीं आए थे, अपने तो जालिम थे ही। ये जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हर खून का हिसाब होगा। हर माएँ, हम इसलिए औलादों को नहीं पालती हैं कि हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों को कत्ल कर दिया जाए, या किसी पागल खाने में करार दिया जाए, या उसको बदनाम कर दिया जाए। नाज़रीन, इतने सालों से मुझे ये जो हलाका गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी कराची गुड मॉर्निंग के पीछे पूरा हलाका MQM का, मंशियात का, कत्लो गार्द एजाज अली अहमद, इसमें पार्टियों के बंदे और ये जरदारी, देखें, इन लोगों को पता होता है, पुलिस को पता है किसने मीर रजा को कत्ल किया। और मैं नासिर जबरान से मैं इतनी उसकी शुक्रगुजार हूँ कि इस किस्म का बहादुर वकील मिला है। तो 2000 के केस में भी भी उस वक्त मेरी शादमा खान को अगवा करके हाजी मुरीद गोड में रखा गया, और पहले से पुलिस को मैंने बोला था कि सबका शौहर और मेरे ससुराल वाले मारे, और तारिक कुरैशी कह रहे बच्चे और उसको दो। एक तारिक कुरैशी पकड़ा ना गया। आज जरदारी पूरी दुनिया में जलील हुआ। अस्मा खान एक दरवेश की बेटी है, दरवेशों की वजह से 600 साल हुकूमत कर रही है। अल्तुर गाजियों ने जो है हुकूमत करी है।
मेरा रूहानियत से ताल्लुक़ है नाज़रीन, मेरी मजबूरी में, जहाद में मैं आज सामने आई हूँ और इन लोगों को बेनकाब करने के लिए ISI जिस तरह काम करती इस तरह इंशाअल्लाह मैंने काम किया। बच गई तो गाजी, मर गई शहीद, हमें मौत से डर नहीं लगता। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में एनी कैदी वीडियो की वजह से बची हुई है। इतने सालों से मैं तो वीडियो नहीं बनाती थी, मेरे अल्लाह और उसके कुरान की सीसा प्लस दीवार है। हमारे साथ शोहदा, नेक शोहदा की मदद अल्लाह की मदद से, हमारे साथ अल्लाह के उसके रसूल की, कुरान की, नमाज की, माँ की खिदमत करिए नाज़रीन। इस अस्मा ने अपने बच्चों को पाला है, उनको दहशतगर्द नहीं बनाया आबद सवाती और ये तारिक कुरैशी की तरह और ये जरदारी की तरह। उर्दू तो सिखा नहीं सके बिलावल भुट्टो को। वो देखे कि नवाज शरीफ का मुकाबला कर रहे थे, आज शहबाज शरीफ ने भी कहा हम अपनी कफ़ारा अदा कर रहे हैं। हमने जो माजी में गलतियां की आज हम तालीम बच्चों को आम कर रहे हैं। हर मुल्क के लिए तालीम हो, बलोचिस्तान हो, सूबा सराज सिंध, हर मुल्क में हर जगह पे अमन हो, उन्हें तालीम दी जाए। औरतों के हकूक़ के लिए तमाम मुल्कों में जितनी दहशतगर्दी है हम उसके खिलाफ है, चाहे वो मोदी करवा के सियासत को चमका रहा है, चाहे वो किसी मुल्क में भी दहशतगर्दी मजहबों के तफरकों के नाम पे होती है। हम सबसे पहले इंसान हैं, जब इंसानों को मिटा दिया जाएगा कौन जिंदा रहेगा? मारने वाले भी मर जाते और कुत्ते की मौत, और बेगुनाह और मासूम लोग शहीद हो जाते और शहीद कभी मरते नहीं। शहीदों को मुर्दा ना कहो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, कल इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह जो जुल्म इन लोगों को किया है हम इन जालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल कुरान कहता है ताकत रखते हो ईमान का मुकम्मल दर्जा नाज़रीन कि जालिम को हाथ से रोको और ज़बान से जालिम को बुरा कहो और दिल में बुरा जानो। ये आज मौलवी हजरात चंदे और बिरयानियाँ खा के चुप होकर दलालियाँ कर रहे, कितनी बेटियों के कत्ल हो रहे, जिना हो रहे, नाहक तलाक़ें दी जा रही हैं और हलाले किए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। इस्लाम के नाम पे चंदे और बेवाओं यतीमों का माल खाने वाले मौलवियों को इबरत का निशान बनाया जाए। ये तमाम अवाम कराची की उठ के खड़ी हो गई है, पूरे मुल्क की अवाम। आज पंजाब की पुलिस ने अस्मा खान को धमकाया, पंजाब की पुलिस के कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे। नवीद जैसे नेवी में दलाल हो या फैज हमीद जैसे फौज में हो या किसी एयरफोर्स में हो या रेंजर्स में, जिस तरह ये कह रहे हैं कि रेंजर्स हमारे साथ है, रेंजर्स को कराची की हिफाजत के लिए गया गया। पाकिस्तान आर्मी SSG कमांडो और जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जहाद कर रहे, उनका साथ दें इंशाअल्लाह। झूठे पपरबंडे को ख़त्म करके इमरान खान को कराची का अगरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनरल आसिम मुनीर बनाएंगे इंशाअल्लाह। उनके फैसले कभी गलत नहीं होते। और अवाम जो है इमरान खान की वजह से जो नफ़रत डलवाई गई जानबूझ के जनरल आसिम मुनीर और फ़ौज के ख़िलाफ़, इंशाअल्लाह उसको साफ़ करें। जनरल आसिम मुनीर इंशाअल्लाह उनके फैसले अल्लाह गलत नहीं करता। दरवेशों की दुआ है, अस्मा दरवेश की दुआ है। मैंने जो जहाद किया, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी अय्याशियों में नहीं, खूबसूरत थी, जवान थी, अपने घर भी बनाया, बच्चे भी पाले, तो घर भी बनाए, पढ़ाया भी, लिखाया भी। आज वो कब्ज़े में कर दिए, मेरे वालिद की और मेरे नाना की प्रॉपर्टी तो कब्ज़े में कर ली थी आबद सवाती साहब का शौहर। और ये सवाल उस जरदारी पर है, इस जरदारी पर सवाल है, इन्हीं के हलाके में रह रही हूँ नाजरीन। हाजी मुरीद गोट मकान नंबर 80 का शनाख्ती कार्ड मेरा भी है, मगर किसको? चोर डकैत आबद सवाती को, तारिक कुरैशी को। और ये एजाज आलम कहाँ है आज भाग गए। आज ये हलाके में पानी नहीं है, गुलबहार के अस्मा खान ने हलाके में पानी लगवाया, गलियां पकियां करवाई, गटर साफ करवाया। अली अहमद कहाँ है? आज करप्शन का पैसा खा के भाग गए, आज उसकी बीवी बिस्तरों पर डल गई। ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, इन्हें फौज का डंडा दिया जाए। मुशर्रफ को भी, मुशर्रफ अच्छा बंदा था, लाल मस्जिद का मौलवियों का पपरगंडा करके फौज को बदनाम करके तहस्सुब फैलाने वालों को फौज बता दे कि इनको चुन चुन के इबरत का निशान बनाए। कामरान टसौरी क्यों चीखता है? जब मेरे ऊपर कामरान सरवर अनवर और ये लोग पूरे हमले कर रहे थे, वीडियो बन रही थी, कामरान टसौरी सो रहा था, कुल प्लाजा वाले चलाए जा रहे थे, खानों की नहीं ज़रूरत। जितने भी जेडी का दफ्तर हो या जितने भी हो, जहाँ सदका ज़कात खैरात इन लोगों को दिया जाए, अपने घर वालों पे खर्च करें, अपने घर वालों पे, करीबी रिश्तेदारों पे, शौहर के बहन भाई, मोहल्ले में ज़रूरतमंदों को करें, जो मुस्तहक लोग हैं उन पे खर्च करें, अपने हाथों से करें। ये करप्शनों में संभाल करके जितने
भी मदरसे जो दहशत गर्दों को पनाह देती है, आबद सवाती जैसे दहशत गर्दों को पनाह देती है, और ये साद रिजवी जैसे दहशत गर्द बनाती है, लियासत तारी, इनको पूरी दुनिया में बेनकाब करें। जो कोई भी पुलिस मारे पीटे वीडियो बना के वायरल कर दो। कोई भी बंदा किसी को मारे पीटे कुछ भी करे, ज्यादती करे, रोडों पे अस्मा खान के साथ वो दुनिया तमाशा ना देखे, वीडियो बना के वायरल कर दे। अस्मा खान के जब पंजाब की पुलिस ने अस्मा खान को धमकाया, आज सामने आए कच्चे चिट्ठे ना, मैं दरवेश की बेटी हूँ, मेरा रूहानियत से ताल्लुक है, इतने साल मेरा जिंदा बचना अल्लाह का मौजज़ा है, क्योंकि मैं एक दरवेश की बेटी हूँ, वरना मैं ये MQM के कातलों में बैठी हुई हूँ, और ये मेरा पैसा खा रहा है जाज आलम, अली अहमद, समर खा रही है, आरफ खा रहा है, और रजिया खा रही है, और ये लोग मेरा पैसा खा रहे हैं, तारिक कुरैशी खा रहा है, एजाज आलम, अली अहमद, हसीब खा रहा है, कामरान सरवर, अनवर सबा खा रहे, वरना मियाँ बीवी के मामले में भाई ये लोग कौन होते हैं? आबद के भाई क्यों नहीं आए? उनको निकाल के आबद सवाती मुझे कह रहा है कि जान से मार के बच्चों को मार दूंगा, उसको टारगेट, उसका ब्रेन वॉश करके ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। क्यों मारोगे आबद सवाती मुझे और मेरे मासूम पाक बच्चों को? क्यों मारोगे? जाओ मारो अपने भाइयों को। ये मेरे मासूम पाक बच्चों को ट्रैप करके तहा की कमाइयाँ कर, मेरी बेटी का गलत इस्तेमाल करके नाज़रीन जाली रिपोर्टें बना रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। ये देखें, ये मेरे बेटे को ट्रैप करके नवीद के जरिए धमका कर, नवीद कह रहा है कि देखो मेरा बेटा नेवी में ऑपरेशन बराज में, नवीद जैसा ये दलाल, ये देखें, ये सबा जैसी ये 2 टके की इनके खिलाफ तमाम, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मोहम्मद शरीफ जैसा मेरे खून, देखें मेरे घरों में खून के छींटे, वीडियो उठा के देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू किया गया, और जादू करने वाले कौन थे नाजरीन? जादू करने वाले के नाम है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक जादू कर दिया गया। सूरह फलक में अल्लाह ताला ने कहा, ये नवीद जैसे जो नेवी में दलाल हो के पंजाबी जतोई बलोच के मेरे बच्चों को ट्रैप करके, मुझे ट्रैप करके घरों में आके गलत बातें की जा रही हैं। अस्मा खान फौज को गालियाँ दी जा रही हैं। अस्मा खान एक फौजी बाप की बेटी है, ठीक है, मैंने जहाद किया, अल्लाह ने मुझे हिफाजत करी। अब जनरल आसम मुनीर अपनी पावर दिखा दें। अब अल्लाह की तरफ से भी हो गया, तारिक कुरैशी भी बर्बाद हो गया, बीवियां भी मर गई, सारी दुनिया भी तबाह हो गई। पाकिस्तान का हर शहरी उठ के खड़ा हो जाए, कोई भी पुलिस कोई भी आपको मारे पीटे, जिस तरह अस्मा खान ने वीडियो बना के डाली और सबूत पेश किए, कोर्टों में गई, पुलिस थानों में गई, इस तरह आप लोग भी कर सकते हो। जिस तरह अस्मा खान ने अपने घरों में खतीजातुल कुबरा की तरह पोलर का, खाने का, सूट का, ज्वेलरी का काम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और क्या नाम है, घर बनाए, और दुश्मनों से मुकाबला किया, ईमान की ताकत से 313 पे फतह नसीब फरमाई। और यावत जैसे ढोंगी जो पुलिस से बचने के लिए, आसिफ जैसे ढोंगी जब कभी रायमंड का सहारा लेते, कभी मौलवियों का सहारा लेते, इन मौलवियों को निकाल के इबरत का निशान बनाओ। सऊदिया जैसा कानून लाया जाए, जिना का बदला कत्ल किया जाए, चोरी का बदला हाथ काटे जाए, और इसी तरीके से जिना का बदला सरेआम वो जो है नाजरीन मासूम बच्चियों का शहरों में कत्ल हो रहा है, और पुलिस जो कोई हादसा हो जाएगा नहीं आएगी, कोई एहतजाज करने निकलेगा तो उसको पुलिस उठा के ले जाएगी। ये पुलिस का जुल्म अब हमने रोकना है। तमाम जितने भी जालिमों को अब हमने इंशाअल्लाह बेनकाब करना है। जरदारी अब हिसाब देगा, जरदारी हिसाब देगा, क्यों नहीं देगा? जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि दरियाए खुराब के किनारे, समंदर के किनारे कुत्ता भी मर जाएगा, हज़रत उमर को जवाब देना पड़ेगा, जरदारी को देना पड़ेगा जवाब। इतने 10 साल के ये बेगुनाहों का ये किस किस्म की लीडरशिप है? पंजाब में भी तो तरक्कियाँ आई ना, क्यों पंजाब कोई अल्लाह ना हासा, कोई एलियन है? पंजाब में कोई अल्लाह ना हासा एलियन रहते हैं, वहाँ पे भी फौज ने करवाया। और ये सियासतों पे, मज़हबों के नाम पे, ये जो मौलाना फजल रहमान और ये जो बलोचों के नाम पर ये जो जरदारी मुल्क को तोड़ा और सिर्फ सिंधी माना जाता है, और सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं किया जाता, इनको दिखा दिया जाए। अब अपनी फौज ताकत दिखा दे, जैसे इंडिया को दिखा दी, जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों को जनरल आसिफ मुनीर ने दिखा दी। अब अपनी पावर दिखाने का हम वो है। बच गए तो गाजी, मर गए शहीद। तमाम माँओं बहनों बेटियों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि आप लोगों ने अपने बाप भाइयों बेटों के लिए, मीर रजा के लिए जैसे निकली, खराज तहसीन पेश करती है। और जबरान नासिर को भी जैसे जबरान नासिर जैसे बहादुर को सलाम पेश करती है कि आज जो है इन जैसे 2 टके के, ये देखो ये तमाचा है, जबरान नासिर जैसा ये इतना बड़ा बलोच है,
बलोचों के नाम पे सिर्फ मारंग बलोच को पकड़ा गया तो ये लोग निकल गए। ये जो अल्ताफ खोसों के लिए मुंह पर तमाचा है, जरदारी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए तमाचा है कि भाई एक जबरान नासिर उठ के शहर का बच्चा उठ के आज खड़ा हुआ, पूरा कराची को हिला दिया गया, पूरे मिनिस्टरों को हिला दिया गया। इस सिस्टम को देख ले, इंशाल्लाह वीडियो बना बना के डालें, वीडियो बना बना के डालें कि किसी को भी मजहबों पे पार्टियों MQM के नाम पर, तो कभी जरदारियों के नाम पर, तो कभी किसके नाम पर, मजहबों के नाम पे, तो तफरकों के लब्बेकों के नाम पे शौकत मलिक ये सारा दहशत गर्दियाँ फैलाएंगे तो अब दहशत गर्दी नहीं चलेगी। हमने आज़ाद होना है, ज़हनों की गुलामी से आज़ाद होना है, हमने जहालत को मिटाना है और कुरान से जुड़ना है। दीन दुनिया की तालीम हमने हासिल करनी है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों क़िना अज़ाबन नार। या रब हमें दीन और दुनिया की खैर व भलाइयाँ अता फरमा, दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमा और दुनिया आखिरत के अजाब से बचा, दुनिया आखिरत की आग से बचा। अस्मा खान हक और सच की आवाज़, जुल्म के खिलाफ जहाद। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्मा खान पूरे हर इंसान के लिए, हर औरत के लिए, हर मजहब और तफरकों का जहां जुल्म होगा, इंशाअल्लाह अस्मा खान ने आवाज़ उठाई है और पूरी दुनिया हर घर से अस्मा खान निकलेगी, हर घर से इंशाअल्लाह जहाद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, कुरान पाक जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, हज़रत अबू बकर जिंदाबाद, हज़रत अली जिंदाबाद, हज़रत उस्मान गनी जिंदाबाद, बीबी आयशा जिंदाबाद, खदीजातुल कुबरा जिंदाबाद और तमाम अल्लाह के वली जिंदाबाद। अल्लाह के वली देते हैं, लेते नहीं हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने 99 लाख को मुसलमान कर दिया, हिंद के शहनशाह और लाल शहबाज ने सेरा को गुलशन बना दिया। अल्लाह वली अल्लाह का दोस्त, सहाबा नबी के दोस्त। सऊदिया जैसे कानून को लाया जाए, वहाँ मौलवी किसी किस्म के भी बैठ के तकरीरें नहीं करता, लोगों को ब्लैकमेल करके ट्रैप करके आयते सूरतों को अपने मफाद में इस्तेमाल करके चंदे बेवा यतीमों का माल खाने वाले मौलवी जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज पर गए और उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं, परों पे आयते थी और मुंह गिद्ध के थे, गले में तस्बियां, कहा ये 21वीं सदी के मौलवी है जो बेवा यतीमों का सदका ज़कात खैरात माल खाते हैं। लानत हो मुनाफिकों पर जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और सूरह बकरा में आधी आयतों को मानते हो, आधी आयतों को नहीं मानते। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़मीन में फसाद फैलाते हो, वो कहते हम तो फसाद नहीं फैलाते, हालांकि यही फसाद फैलाते हैं। इन फसादियों को तबाह और बर्बाद किया जाए। हमने सब ने मिल के जंग लड़नी है, अपने बच्चों के लिए भी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़नी है। ना तो MQM की दहशत गर्दी चलेगी अल्ताफ भाई की, ना तो जरदारी की चलेगी, ना किसी पार्टी की चलेगी। जो हमारे मुल्क को फ़ायदा देगा, पाकिस्तान के साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाक जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हक और सच के अल्लाह की तरफ से फैसले आ चुके, बातिल मिट गया, हक आ गया, अब कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के गैबी फरिश्तों की ताकत है, जिस तरह पाकिस्तान के साथ थी इंशाअल्लाह शहुदा की और अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबियों की, रसूलों की, सहाबा की, अल्लाह के नेक जिन्नात की, अल्लाह की मदद से, हमारी कुरान से मदद होगी, हर जगह पे मदद होगी। हम ईमान के साथ खड़े में। अस्मा खान, पाकिस्तान, हक और सच की आवाज़, जुल्म के खिलाफ जहाद।